Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and this is the first lecture of course MGT 561. The course description is Supply Chain Management. The book which we will be using in this course will be Supply Chain Management, Strategy, Planning and Operations. It is the 5th edition and it is the book, the publisher of the book is Pearson Publishing. The author of the book is Sunil Chopra and Peter Mandel. Why I have chosen this book? Because it is easily available in Pakistan. You can find out its 3rd edition, 5th edition. Basically in this course we will be covering the 5th edition, but the difference between 3rd and 5th edition, it's not that much. The theory overall structure of the book is the same. The only difference is in terms of different case studies which are given in the book. So it will be very good, or it will be better if you get the 5th edition rather than the 3rd edition, because then when I will give you the assignments, you can have the same assignments as the one which I am giving you. With this introduction of the course description, the book which we will be following, and the edition of the book, the author of the book, now let's start with my introduction. My name is Dr. Fahad Amjad. I am a PhD in Supply Chain Management. As you can see in this slide, a brief introduction of my academic career. I started with my engineering degree in 2002. And with an engineering degree, I went on to work for 2 years in private corporates. The corporate was into energy generation, so for 2 years I have corporate experience in operations. Then I went on for my master's and then my PhD. My master's was in industrial engineering, or you can say engineering management, and then my PhD was specialized in the subject of supply chain management. Overall, I have taught this course multiple times. This course, Supply Chain Management, it has a little bit of operations management into it, little concepts of operations management, a little bit theory. We will see in the next slide and in the coming slides what exactly the course will cover, but overall the supply chain management subject is very closely related to operations management. Now let's discuss a little bit about the outline of the course, what you can expect out of this course. Of course, there will be around 30 to 32 lectures of this course. So overall in those 30 to 32 lectures, what can you expect कि जी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, क्या चीज़ें हम कवर करेंगे. First of all, जो पहली चीज़ हम कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर कि we will build a strategic framework to analyze supply chains. हम उस थ्योरी को पढ़ेंगे, हम उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो आपको एक फ्रेमवर्क या एक ढांचा बनाने में मदद देंगे अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ सप्लाई चेन. तो सारी थ्योरी, सारे परफॉर्मेंस मेजर्स, इसी तरीके से what are the drivers of the supply chain, what are the matrices, what are the performance matrices of the supply chain. तो ये सारे के सारे हम जो टॉपिक्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर कि जी सप्लाई चेन होती क्या है, उसको किस तरीके से हम उसका एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना सकते हैं. तो इस कोर्स के अंदर जो सारा कंटेंट होगा उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे सप्लाई चेन के सब्जेक्ट को समझने में.
दूसरा जो बेसिक आउटलाइन है सब्जेक्ट की कि व्हेन वी विल read or when we will go through this subject in the 30 to 32 lectures, we will be able to answer questions related to designing the supply chain networks. कि किस तरीके से एक थ्योरी आपने तो पढ़ ली, अब सप्लाई चेन को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, सप्लाई चेन नेटवर्क को डिज़ाइन किस तरह किया जाएगा, क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से बेसिक डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं सप्लाई चेन को डिज़ाइन करते हुए, तो वो हम इस ओवरऑल सब्जेक्ट के अंदर या इस ओवरऑल कोर्स के अंदर कवर करेंगे. तीसरा जो हमारा स्ट्रेटेजिक आउटलाइन है, जो दीज आर द थिंग्स विच स्ट्रेटेजिक आउटलाइन के अंदर जो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर द थिंग्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू डू दिस. सो पहला जो आउटलाइन था कि जी हमें एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी सप्लाई चेन की. दूसरा हमारे पास एक प्रोसीजर होगा या एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से सप्लाई चेन को डिज़ाइन किया जाता है, सप्लाई चेन नेटवर्क को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है. सप्लाई चेन एंड सप्लाई चेन नेटवर्क्स, दे आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स. सो डिज़ाइनिंग अ सप्लाई चेन नेटवर्क बेसिकली मीन्स कि हम सप्लाई चेन को डिज़ाइन किस तरह कर सकते हैं. तीसरी चीज़ जो हमें सब्जेक्ट के अंदर या इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे वो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग डिमांड एंड सप्लाई इन दी सप्लाई चेन. एक दफ़ा हमें पता चल गया सप्लाई चेन होती क्या है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आ गया, हमने डिज़ाइनिंग ऑफ द सप्लाई चेन देख ली, तो फिर हम उसके अंदर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम को भी देखेंगे कि एक आपके पास फिजिकल नेटवर्क मौजूद है सप्लाई चेन का, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कि जी किस तरीके से आपने अपने फिजिकल रिसोर्सेज को या सप्लाई चेन रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कराना. चौथा जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजिक आउटलाइन है इस कोर्स की, वो प्लानिंग एंड मैनेजिंग इन्वेंट्रीज इन सप्लाई चेन. अब इन्वेंट्रीज जो है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपको पहले कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज का थोड़ा बहुत आइडिया या कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कुछ थोड़ा बहुत एक्सपोजर होगा. हम उस लिमिटेड या बिल्कुल बेसिक एक्सपोजर से ज़रा आगे जाएंगे कि जी सप्लाई चेन, जब आपने सप्लाई चेन नेटवर्क डिज़ाइन किया है तो उसके अंदर इन्वेंट्रीज को आपने किस तरह से मैनेज करना है. तो ये थोड़ा बहुत आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री प्लानिंग जो है वो इस जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इसका बेसिक मकसद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री प्लानिंग सप्लाई चेन के अंदर. जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, दैट इज डिजाइनिंग एंड प्लानिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स. सप्लाई चेन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने सप्लाई चेन की एक बेसिक फ्रेमवर्क ताकि बनाना था या बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन करनी थी ताकि हम सप्लाई चेन को समझ सकें. दूसरा, हमने नेटवर्क्स को डिज़ाइन करना, किस रिसोर्सेज को, किन फैक्ट्री को कहाँ लगाना है, किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को कहाँ लगाना है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर किस कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचाएगा, ये सारा डिज़ाइन नेटवर्क्स के अंदर, डिज़ाइनिंग अ सप्लाई चेन नेटवर्क के अंदर आ जाता है. तीसरी चीज़ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन थी कि किस तरीके से डिमांड आएगी और किस तरीके से सप्लाई को हम मैनेज करेंगे, उसको प्लान करेंगे, उसको कोऑर्डिनेट करेंगे. किस तरीके से चौथे पॉइंट के अंदर हमने इन्वेंटरीज को प्लान करना है. तो जो पांचवा है कि किस तरीके से अब हमने चीज को ट्रांसपोर्ट करना है. ठीक है कि जी आपके पास इन्वेंटरीज हैं, आपके पास कस्टमर की तरफ से डिमांड आई है, आपके पास सप्लायर की तरफ से प्रोडक्ट आई है, अब आपने उस सप्लाई को, ओवरऑल सप्लाई एंड डिमांड को किस तरह से सेटिस्फाई करना है, और वो जो दरमियान वाला प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है. तो ओवरऑल जब हम इस कोर्स को ख़त्म करेंगे, दिस कोर्स हैज़ अबाउट 30 to 32 लेक्चर्स, उसके अंदर हम ये सारे के सारे स्ट्रेटेजिक आउटलाइंस या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे.
कि हमें पता होगा सप्लाई चेन किस तरह डिज़ाइन की जाती है, सप्लाई चेन को किस तरीके से आप समझ सकते हो, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं सप्लाई चेन के अंदर, एक फिजिकल सप्लाई चेन नेटवर्क को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, कोऑर्डिनेशन किस तरह प्लान की जा सकती है, इन्वेंट्रीज को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, और कस्टमर की डिमांड को किस तरह से सेटिस्फाई किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किस तरह करना है, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट से भी आएंगे, मगर इस सप्लाई चेन का और ऑपरेशंस मैनेजमेंट का थोड़ा सा ज़रा, ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज़ यू कैन से सुपर क्लास या इज़ अ much more base subject, supply chain management is much more specialized subject, जिसके अंदर basic decisions कि आपने किस तरह से अपने physical resources को डिज़ाइन करना है, किस तरह से उनके दरमियान में logistics को मैनेज करना है, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन करनी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। Let's start after giving you my introduction, after giving you the course introduction. Now let's start with the first chapter. जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, दिस इज अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन, कि जी जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको भी पिछले कोर्स का ऑब्जेक्टिव बताया है ना, 5-6 ऑब्जेक्टिव्स, उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव है कि जी सप्लाई चेन, व्हाट इज सप्लाई चेन, सप्लाई चेन होती क्या है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड सप्लाई चेन। ओवरऑल चैप्टर 1 जो है वो इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, फिर उसके साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता कोर्स आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाते जाएंगे। डिस्कस द गोल ऑफ सप्लाई चेन एंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन डिसीजंस ऑन द सक्सेस ऑफ अ फर्म। इस चैप्टर का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने सप्लाई चेन के गोल्स का बताना है कि जी ओवरऑल सप्लाई चेन का बेसिक गोल क्या होता है, और हमने ज़रा सा इंट्रोडक्शन आपको देना है कि जी किसी भी डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होता है सप्लाई चेन की सक्सेस पे या फेलियर पे। दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर का है, इट इज़ आइडेंटिफाई द 3 की सप्लाई चेन डिसीजन फेजेस एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच वन। सप्लाई चेन के कुछ डिसीजन फेजेस होते हैं, आपको मैं ये आगे जाके डिस्कस करूँगा। बेसिकली किसी भी डिसीजन के अंदर जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 लेवल्स के अंदर, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, टैक्टिकल डिसीजन एंड ऑपरेशनल डिसीजन। तो सप्लाई चेन के अंदर भी कुछ हायरार्कीज होती हैं डिसीजन की। अब आपने सप्लाई चेन का नेटवर्क बनाना है, सप्लाई चेन का नेटवर्क से मेरी मुराद है कि आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उसके लिए आपके पास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के को सामान पहुंचाने के लिए कोई सप्लायर्स हैं, उन सप्लायर्स को कहाँ वो सप्लायर्स हैं, आपने फैक्ट्री कहाँ लगानी है, फैक्ट्री से जो चीज़ बनेगी वो किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, वो किधर है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर किस किस कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाएगा। तो ये सारा क्या एक सप्लाई चेन बन गई है। तो ये जो सप्लाई चेन नेटवर्क जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक लेवल या हायर लेवल डिसीजन। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि सप्लाई चेन के डिसीजंस फेजेस क्या होते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती हैं, मगर जब भी कोई डिसीजन आता है उस डिसीजन को हम रफली कैटेगराइज कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल पे, और हम आगे स्लाइडों में देखेंगे कि जी सप्लाई चेन के अंदर भी कौन कौन से डिसीजंस होते हैं। जो चौथा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का, दैट इज डिस्क्राइब द साइकिल एंड पुश पुल व्यू ऑफ द सप्लाई चेन। अब जाहिर बात है हम सप्लाई चेन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए या कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यूज़ होने चाहिए जिससे हम सप्लाई चेन को समझ सकें। तो द मोस्ट कॉमन यूज्ड पर्सपेक्टिव्स या पॉइंट ऑफ व्यू दे आर साइकिल व्यू एंड पुश एंड पुल व्यू। ये हम देखेंगे कि जी क्या होते हैं, मगर ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिरी जो ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का, दैट इज क्लासिफाई सप्लाई चेन मैक्रो प्रोसेसेस इन अ फर्म। कि सप्लाई चेन को हमने एक पर्सपेक्टिव से देखा,
वो है साइकिल एंड पुश पुल व्यू। अब दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि जी मैक्रो प्रोसेसेस क्या होते हैं और जो सप्लाई चेन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं मैक्रो प्रोसेसेस के अंदर। तो ओवरऑल इस चैप्टर के ये 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली इस चैप्टर को। व्हाट इज सप्लाई चेन? सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन बेसिकली इन लेमैन या सबसे सिंपल टर्म में आपको मैं बताऊं तो एक फैक्ट्री आपके पास है, उस फैक्ट्री को आपने उसकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन को मैनेज करना है। उस फैक्ट्री के अंदर कोई रॉ मटेरियल आएगा, उस फैक्ट्री के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस हो रहा होगा कि रॉ मटेरियल पे कोई ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस होगा और उससे आप एक फिनिश्ड गुड या कंप्लीटेड गुड बनाओगे। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो काम फैक्ट्री के अंदर हो रहा है ये फैक्ट्री के ऑपरेशंस हैं। अब फैक्ट्री की बाउंड्री से आप आगे जाएं कि जी पीछे जाएं तो सप्लायर आ जाए और आगे जाएं तो डिस्ट्रीब्यूटर आ जाए। तो अब ये सारी की बाउंड्री आपने एक्सपेंड कर दिया फ्रॉम सप्लायर टू द प्रोडक्शन प्लांट टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टू द कस्टमर। तो जब आपकी बाउंड्रीज बढ़ जाती हैं या बाउंड्रीज एक्सटेंड हो जाती हैं, उन एक्सटेंडेड बाउंड्री के अंदर किस तरह हमने मैनेजमेंट करनी है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। आपने अगर एक कंपनी की या एक फैक्ट्री की मैनेजमेंट करनी है तो वो तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अम्ब्रेला के अंदर आएगी, मगर जब आपने एक पूरे नेटवर्क या सेट ऑफ रिसोर्सेज को मैनेज करना है तो तब वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है सप्लाई चेन होती क्या। ऑल स्टेजेस इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फुलफिलिंग अ कस्टमर रिक्वेस्ट। जो कस्टमर चाहता है, जो कस्टमर की रिक्वेस्ट है, वो सारी स्टेजेस जो कस्टमर चाहता है उसको फुलफिल करने के लिए सारी स्टेजेस, सारे रिसोर्सेज जो आपके पास हैं उनको हम सप्लाई चेन कह सकते हैं। इसके अंदर सप्लाई चेन के अंदर मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, ट्रांसपोर्टर्स आते हैं, वेयर हाउसेज आते हैं, रिटेलर्स आते हैं और आखिर में कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, कस्टमर अगर आप देखें हमेशा ये कस्टमर होगा, उससे पहले आपके पास रिटेलर होगा, उससे पहले आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होगा या वेयर हाउस होगा, उससे पहले आपके पास मैन्युफैक्चरर होगा, उससे पहले आपके पास मैन्युफैक्चरर के सप्लायर्स होंगे और इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ट्रांसपोर्टर्स होंगे। ठीक है, तो सप्लायर से आपको रॉ मटेरियल मिलता है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में या वेयर हाउसेज में, वेयर हाउसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से चीज़ें फिनिश्ड गुड रिटेलर तक डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और रिटेलर आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है। तो ये जो सारे के सारे एंटिटीज़ हैं, फिजिकल एंटिटीज़ हैं, ये आपकी सप्लाई चेन के अंदर इंक्लूड होते हैं। इनको हम स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन भी कह सकते हैं कि जी पहली स्टेज आपके पास सप्लायर की, दूसरी स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की, तीसरी डिस्ट्रीब्यूटर की, चौथी रिटेलर की और आखिरी स्टेज कस्टमर की। कस्टमर की किसी प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट होगी, उसको फुलफिल करने के लिए वो सारी स्टेजेस, वो सारे रिसोर्सेज जो इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स का। इनडायरेक्टली कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टर्स। वो सारी प्रोडक्ट को आइदर इट कैन बी रॉ मटेरियल और इट कैन बी फिनिश्ड गुड्स, वो सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर पहले रॉ मटेरियल आता है, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस होता है या उसके ऊपर कोई काम किया जाता है और फिर ही वो आखिर में फिनिश्ड गुड बनता है ना। इसलिए मैंने इधर रॉ मटेरियल इधर लिखा है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिनिश्ड गुड्स इधर लिखा है।
Within each company, the supply chain includes all functions involved in fulfilling a customer request. अब आप supply chain के अंदर कौन कौन से functions होते हैं? Product development का हो सकता है, marketing, operation, distribution, finance and customer services. ये सारे के सारे जो processes होते हैं वो या सारे के सारे functions होते हैं वो supply chain के अंदर किए जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जी हर कंपनी के अंदर ये सारी स्टेजेस, हर कंपनी की सप्लाई चेन के अंदर ये सारी स्टेजेस हो. बाज़ कंपनीज हैं उनका बिजनेस मॉडल ज़रा डिफरेंट है. जब बिजनेस मॉडल डिफरेंट होता है तो शायद कोई ना कोई स्टेज इसके अंदर ओमिट की जा सकती है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ डेल कंप्यूटर्स. अब डेल कंप्यूटर्स जो हैं वो किसी रिटेल आउटलेट, किसी सुपरमार्केट या किसी भी दुकान में नहीं बिकते, वो डायरेक्टली कस्टमर तक बिकते हैं. तो वो कस्टमर इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट पे जाके वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है, वो ऑर्डर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उसको फुलफिल करता है. तो ज़रूरी नहीं है सप्लाई चेन के अंदर आपके सारी स्टेजेस हों. ठीक है, तो ओवरऑल सप्लाई चेन के अंदर ये होती हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि जी आपके पास सारी स्टेजेस हों सप्लाई चेन के अंदर. कस्टमर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सप्लाई चेन. बगैर कस्टमर के तो जाहिर बात है ना, आप किस चीज़ को या किस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहे हो, किस डिमांड को फुलफिल कर रहे हो. तो कस्टमर इन अ कमर्शियल सप्लाई चेन, कस्टमर इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी. और भी तरह की सप्लाई चेन्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी होती हैं, मगर नॉर्मल केसेस के अंदर जो सप्लाई चेन्स होती हैं वो कमर्शियल सप्लाई चेन्स होती हैं. वो कस्टमर रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं और कस्टमर जो डिमांड करता है वो सप्लाई चेन उसी को सेटिस्फाई करती हैं, उस डिमांड को. सप्लाई चेन के अंदर कौन कौन सी फंक्शंस हैं या मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं. सप्लाई चेन के अंदर मूवमेंट है मटेरियल की, सप्लायर से कस्टमर की तरफ जाता है मटेरियल, फिजिकल रिसोर्स और इंफॉर्मेशन. ठीक है, मटेरियल आगे की तरफ जाता है, इंफॉर्मेशन पीछे की तरफ आती है और मनी पीछे की तरफ या फाइनेंस पीछे की तरफ आता है. ठीक है, तो आप एक प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हो, कस्टमर की फीडबैक आती है, वो इंफॉर्मेशन होती है, वो पीछे की तरफ आती है और कस्टमर की तरफ से जो रेवेन्यूज जनरेट होते हैं वो भी पीछे सप्लाई चेन के अंदर आती हैं. अब सप्लाई चेन को डिफरेंट लफ्ज़ों से आप कह सकते हो या डिफरेंट नॉमेनक्लेचर से या डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं लिटरेचर के अंदर. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई नेटवर्क्स, सप्लाई वेब. तो ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इनका यही है कि जी एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करना. ठीक है, सप्लाई चेन के अंदर जो मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर भी बताया कि जी एक टिपिकल आपके पास स्टेजेस होती हैं सप्लाई चेन की. उसके अंदर कस्टमर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स. तो सप्लाई चेन की जो टिपिकल स्टेजेस हैं वो ये होती हैं. कभी ज़रूरी नहीं है हर सप्लाई चेन के अंदर ये सारी स्टेजेस हों. इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है. फिर जब कंपनी का कोई ख़ास बिजनेस मॉडल होता है उसके हिसाब से सप्लाई चेन को डिज़ाइन किया जाता है. ये मैं आपको एक सिंपल सप्लाई चेन की एग्जांपल है. एक डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग, डिटर्जेंट को बनाने के लिए एक सप्लाई चेन है. अब डिटर्जेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. अब आप देखें इसके अंदर रॉ मटेरियल सप्लायर्स कौन हैं. आपके पास टिम्बर, केमिकल एंड प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, दे आर दी रॉ मटेरियल सप्लायर्स. रॉ मटेरियल सप्लायर्स से आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स हैं उनके सप्लायर्स हैं. वो फिर आगे जाके इस स्टेज पे आके आपकी प्रोडक्ट को असेंबल कर रहे हैं कि जी गत्ता एक तरफ से आ रहा है, केमिकल दूसरी तरफ से आ रहे हैं, प्लास्टिक तीसरी तरफ से आ रही हैं. तो सारे रॉ मटेरियल या
कंपोनेंट्स के जो सप्लायर्स हैं वो एक जगह पे आके मैन्युफैक्चर करते हैं, और यहाँ तक आपके पास रॉ मटेरियल था या ये कंपोनेंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट था। उसके बाद ये प्रोडक्ट जब जब असेंबल हो जाती है, मैन्युफैक्चर हो जाती है, तो इस स्टेज पे हमारे पास फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ तक सारा रॉ मटेरियल या वो था, कंपोनेंट्स थे फाइनल प्रोडक्ट के या फाइनल गुड्स के, मगर जब मैन्युफैक्चर हो गया तो वो फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल गुड उसको कहा जाता है। अब इसके दरमियान में जो काम हो रहे होंगे तो तब प्रोडक्ट को क्या कहा जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। तो आपके पास रॉ मटेरियल होगा या कंपोनेंट्स होंगे, वो वर्क इन प्रोग्रेस होंगे या वर्क इन प्रोसेस होंगे, और जब वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके ऊपर सारा काम हो जाएगा, तो वो फिनिश्ड गुड्स बन जाएंगे या फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएंगे। फिर जब एक दफ़ा मैन्युफैक्चर से तैयार हो गई चीज़, उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट किया, फिजिकली प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया आपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से फिर वो रीजनल स्टोर्स के अंदर प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हुई, और रीजनल स्टोर से कस्टमर तक प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो गई। तो रॉ मटेरियल से होते 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 वो कस्टमर की तरफ जा रही है। अब क्या बात है, कस्टमर की तरफ फिजिकल फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट इज फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। ये आपके पास फिजिकल फ्लो है प्रोडक्ट का। ठीक है, अब रेवेन्यूज एंड इंफॉर्मेशन किस तरफ जा रही है? वो इस साइड पे जा रही है कि जी सब कस्टमर से जो पैसा जनरेट हो रहा है, वो रेवेन्यूज जो हैं, रेवेन्यूज एंड सेल्स जो हैं, उनसे जो पैसे बन रहे हैं वो पीछे की तरफ आ रही है, कस्टमर से पीछे की तरफ आ रही है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन जब मैं कह रहा हूं कि जी कितनी चीज कस्टमर ने खरीदी, सेल्स इंफॉर्मेशन, जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल्स डाटा भी कहते हैं, POS डाटा, कितनी चीज कस्टमर ने खरीदी, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये फिर पीछे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग सारी की सारी रिटेलर्स के पास आती है, रिटेलर फिर अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के साथ शेयर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फिर जाके कॉरपोरेशन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग वो जो है फैक्ट्रीज, उनसे शेयर करते हैं कि जी कितनी प्रोडक्ट बिकी है। तो फिर ये जो इंफॉर्मेशन आ जाती है कि जी सेल्स की इंफॉर्मेशन है, तो उसके हिसाब से फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्शन को मैनेज किया जाता है वो फोरकास्ट किया जाता है कि जी पिछले महीने की जो सेल्स थी वो ये थी, अब हम फोरकास्ट करते हैं इतनी होगी। तो फिजिकल फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट इन अ सप्लाई चेन इज फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। इसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन और रेवेन्यूज का फ्लो है वो ऑपोजिट साइड पे है, कस्टमर से सप्लायर्स की तरफ जाता है। यही चीज हमने इस स्लाइड के अंदर शो करने की कोशिश की है कि जी आपके पास सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, कस्टमर्स हैं, ये सारी स्टेजेस हैं। ओवरऑल एक कंप्लीट सप्लाई चेन के अंदर ये स्टेजेस होती हैं और उनका कनेक्शन क्या है। अब आप देखें इसके अंदर एरोस की ज़्यादा वो तो नहीं लिखी हुई, डायरेक्शंस तो नहीं हुई, मगर ओवरऑल आपको फॉरवर्ड डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं कि जी ऐसे ये प्रोडक्ट मूव करती है। अब इसको ज़्यादा अगर हमने वो करें, किसी केस के लिए कस्टमाइज कर लें, तो हम कह सकते हैं कि जी हम लेट्स से कि जी हमारे पास एक सप्लायर है, दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, दो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एक रिटेलर है और 3 कस्टमर हैं। तो लेट्स से कि जी हम इन दो को मिटा देते हैं, हमारे पास दो मैन्युफैक्चरर हैं, हम इसको मिटा देते हैं। वी हैव 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसको हमने कर दिया, 2 रिटेलर्स हैं और हमारे पास 3 कस्टमर हैं। तो ये प्रोडक्ट सप्लायर से इस मैन्युफैक्चरर या इस मैन्युफैक्चरर तक पहुंच सकती है। ये मैन्युफैक्चरर जो है वो इसको भी पहुंचा सकता है, इसको भी पहुंचा सकता है, इसी तरीके से ये वाला इसको भी पहुंचा सकता है, फिर इसी तरीके से इधर भी ये पहुंचा सकता है, इधर भी पहुंचा सकता है, उसी तरीके से वो भी इधर पहुंचा सकता है। और फिर आखिर में आपके पास ये रिटेल स्टोर्स हैं जो इन सारे कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं। तो आप देखें एक वेब और एक नेटवर्क बन गया है।
तो इसी को ही हम सप्लाई चेन नेटवर्क कहते हैं, या सप्लाई वेब कहते हैं, या सिंपल टर्म्स के अंदर सप्लाई चेन कह देते हैं। सप्लाई चेन का ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सप्लाई चेन? अब मैंने आपको कहा था ना, कमर्शियल सप्लाई चेन्स का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव जो होता है दैट इज रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है, उसका मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट। सप्लाई चेन आपने ऐसी डिजाइन करनी है जिससे आपकी कंपनी का प्रॉफिट या किसी कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, उस कॉर्पोरेट के अंदर वेस्ट ना हो इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, उसका सरप्लस सबसे ज्यादा हो। सप्लाई चेन का जो प्रॉफिट होता है उसको सरप्लस कहा जाता है, सप्लाई चेन प्रॉफिट्स भी कहा जा सकता है, या सप्लाई चेन सरप्लस भी कहा जा सकता है। सरप्लस क्या होता है? कस्टमर वैल्यू माइनस सप्लाई चेन कॉस्ट। कस्टमर को जो आप प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो उसकी क्या वैल्यू है, और उसमें से ज्यादातर सप्लाई चेन्स की क्या कॉस्ट है। अगर आपने कोई चीज बनाई है 10 रुपए की और आपकी कॉस्ट जो है सप्लाई चेन की 8 रुपया है, तो सप्लाई चेन का सरप्लस क्या है? 2 रुपया। 2 रुपये आपने बचा लिए उस सप्लाई चेन से। सप्लाई चेन के अंदर वो सब कुछ आ जाता है कि जी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको स्टोर करना, उसको कस्टमर तक पहुंचाना, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो किसी भी कमर्शियल सप्लाई चेन जो होती है उसका सरप्लस हमेशा पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में नहीं आता। अगर सप्लाई चेन का सरप्लस नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब है कि आपको नुकसान हो रहा है और आपकी जेब से पैसे निकल रहे हैं कस्टमर की डिमांड को पूरा करने, विच इज फॉर अ कमर्शियल बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमेशा जो सक्सेसफुल सप्लाई चेन्स होती हैं उनका सरप्लस पॉजिटिव में आता है, यानी कि जितनी उनको कॉस्ट पड़ रही है और जितनी वो कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट उनको कम पड़ रही है, तो उनको ओवरऑल सप्लाई चेन में फायदा हो रहा है। अब दूसरी तरह की कौन सी सप्लाई चेन होती हैं? ये तो मैंने बता दिया ना आपको कि जी जो कमर्शियल सप्लाई चेन्स होती हैं, कमर्शियल सप्लाई चेन्स जो हैं उनके अंदर आप ये कह सकते हो, कमर्शियल सप्लाई चेन्स, उनके अंदर आप कह सकते हो कि जी आपका सरप्लस जो है मैक्सिमाइज होना चाहिए, पॉजिटिव। अब डिजास्टर सप्लाई चेन्स भी होती हैं, कहीं डिजास्टर आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं फ्लड्स आ गए, तो डिजास्टर सप्लाई चेन्स उनका ऑब्जेक्टिव might not be maximization of supply chain surplus या maximization of profit। उनका आप कह सकते हो डिजास्टर सप्लाई चेन का कि जी उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रिस्पॉन्स होना चाहिए कि जी कितनी तेजी से मैं चीज को पहुंचा सकता हूं। ठीक है, तो सप्लाई चेन जब आप अभी तो हम ओवरऑल सप्लाई चेन जब पढ़ेंगे तो हम कमर्शियल सप्लाई चेन्स को ही टच करेंगे, मगर ज़रूरी नहीं है सप्लाई चेन सिर्फ कमर्शियल सप्लाई चेन्स भी हों। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी सप्लाई चेन्स होती हैं, डिज़ास्टर के रिस्पॉन्स के लिए भी सप्लाई चेन्स होती हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए भी सप्लाई चेन्स होती हैं। उनका ज़रूरी नहीं है कि जी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स हो या मैक्सिमाइजेशन ऑफ सरप्लस हो। कमर्शियल सप्लाई चेन्स का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इज सप्लाई चेन सरप्लस, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मगर जो दूसरी तरह की होती हैं उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जिस तरह डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्स, सप्लाई चेन तेज होनी चाहिए, उसे चीज तेजी से पहुंचनी चाहिए, सप्लाई चेन की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए कि थोड़े से थोड़े टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ ऑब्जेक्ट्स पहुंच सकें। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव डिपेंड करते हैं कि आप किस चीज के लिए सप्लाई चेन बना रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन्स, वही बात रेवेन्यूज जो मैंने आपको सप्लाई चेन सरप्लस की बात की थी कि जी इफ़ यू मेक अ प्रोडक्ट विच जो आप कस्टमर को $60 की बेच रहे हैं, तो बाकी सारी कॉस्ट जो आपको पड़ रही हैं, आपने कोई प्रोडक्ट बेची है कस्टमर को $60 की, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में, स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में और असेंबल करने में कितनी कॉस्ट आपको आई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कंपोनेंट्स बनाने में, असेंबल करने में जितनी सारी की सारी कॉस्ट आई है, दैट इज द सप्लाई चेन कॉस्ट। और जो डिफरेंस होगा, जो कस्टमर को आप चीज बेच रहे हो माइनस द कॉस्ट जो सप्लाई चेन के अंदर आपको लग रही है, दैट विल बी सप्लाई चेन प्रॉफिट या सप्लाई चेन सरप्लस। अब एक और इम्पॉर्टेंट
थीम जो आ जाती है सप्लाई चेन के अंदर वो ये आ जाती है कि सप्लाई चेन के जो प्रॉफिट्स होते हैं, उन सप्लाई चेन की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो पूरी सप्लाई चेन के अंदर देखी जाती है। ये नहीं देखी जाती कि भाई मेरा तो डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा प्रॉफिटेबल है और सारी सप्लाई चेन के बाकी स्टेजेस जो हैं वो इतनी प्रॉफिटेबल ना हो। सप्लाई चेन की प्रॉफिटेबिलिटी एज अ होल देखी जाती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन को पकड़ लो कि जी डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर या सप्लायर या रिटेलर और उन्हीं को ही कहो कि जी ये तो बड़े प्रॉफिटेबल है। सप्लाई चेन की पूरे कॉस्ट स्टेजेस की प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, पूरी सप्लाई चेन की प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, सिंगल कंपोनेंट या सिंगल स्टेज की नहीं देखी जाती। सप्लाई चेन के अंदर जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, जाहिर बात है आपका जो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो आपका कस्टमर है। सप्लाई चेन के अंदर कॉस्ट्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन का फ्लो को मैनेज करने के लिए कि जी पॉइंट ऑफ सेल्स डाटा मैंने आपको बताया था, पॉइंट ऑफ सेल्स डाटा किस तरह कलेक्ट किया जाता है। जब आप सुपरमार्केट में जाते हो तो वो आपको चीज़ देते हैं तो उसको लेज़र से गुजारते हैं तो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है कि जी ये वाली प्रोडक्ट खरीदी है इसने, तो ये पॉइंट ऑफ सेल्स डाटा है। अब ये सारी इस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, उस पर भी तो कोई पैसा लगता है ना, किसी ने भी वो कंप्यूटर खरीदा ही है ना, या उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मैनेज कर रहे हैं, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं वो किसी ने खरीदे ही है ना। तो वो सारी की सारी जो है वो कॉस्ट्स हैं सप्लाई चेन की। आपकी प्रोडक्ट कितनी में बनती है, आपके फंड्स का फ्लो फ्रॉम स्टेजेस टू स्टेजेस, डिफरेंट बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं फ्लो ऑफ फंड्स में, उसमें आपका कितना पैसा लग रहा है, इंफॉर्मेशन फ्लो में आपका कितना पैसा लग रहा है, फिजिकल जो प्रोडक्ट आपने बनाई है उसको ट्रांसपोर्ट करने में कितना पड़ रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में आपके कितने पैसे लग रहे हैं, ये सारे की सारी कॉस्ट हैं सप्लाई चेन की, ठीक है। और जाहिर बात है अगर आपने इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट करनी है तो आपने सप्लाई चेन का सरप्लस या सप्लाई चेन की प्रॉफिटेबिलिटी उसको मैक्सिमाइज करना है। आप सप्लाई चेन की प्रॉफिट सरप्लस जो है नेगेटिव में लेके चले गए तो 2 दिन के अंदर बिजनेस बंद हो जाएगा। तो सप्लाई चेन की सरप्लस शुड ऑलवेज बी, फॉर कमर्शियल सप्लाई चेन इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट जाहिर बात है डिजास्टर सिचुएशन है तो उसके अंदर हम वी कैन निगलेक्ट द कॉस्ट कंपोनेंट, वी कैन ओनली कंसिडर रिस्पॉन्सिवनेस कभी कभी, मगर ये भी इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि जी आपको कम से कम कॉस्ट पड़े, कम से कम कॉस्ट पड़ेगी तो जाहिर बात है आप ज़्यादा लोगों की मदद कर सकोगे। सप्लाई चेन के कुछ डिसीजंस हैं, आई वुड प्रेफर कि आप जाएं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने इस चैप्टर के जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो मैं आपको ओवरऑल एक बिगर पिक्चर दे रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जाएं और बुक के चैप्टर को पढ़ें, सिर्फ स्लाइड्स पे ही नहीं, आपने पूरा अपना फोकस रखना, आपने बुक को भी जाके पढ़ना है। बुक के अंदर आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, कुछ सप्लाई चेन के डिसीजंस की आपको एग्जांपल मिलेंगी कि जिस तरह वॉलमार्ट है उसने अपनी सप्लाई चेन डिसीजंस किए तो उनका कितना रेवेन्यू बढ़ा। इसी तरह एक 7-Eleven जापानीज स्टोर है, ये बेसिक वॉलमार्ट की तरह या फूड आइटम्स का स्टोर है, उसने जब अपनी सप्लाई चेन को बेहतर किया, किस तरीके से बेहतर किया, क्या क्या चीज़ें बेहतर की, कैसे उसका फिर प्रॉफिट्स बढ़े। इसी तरह डेल का जो डिसीजन था कि आप वो रिटेलर के थ्रू नहीं जाएंगे और डायरेक्ट कस्टमर को चीज़ पहुंचाएंगे तो उससे उनको कितना फ़ायदा हुआ। तो ये सारे सप्लाई चेन के डिसीजंस हैं और ये आप आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जब ये लेक्चर पढ़ेंगे या ये लेक्चर सुनेंगे उसके बाद अपना ओवरऑल चैप्टर खोलेंगे बुक का, चैप्टर 1, और फिर उसको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे, रीड थ्रू करेंगे। अब हम आते हैं, हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव था ना कि जी सप्लाई चेन के डिसीजंस क्या होते हैं, डिसीजन फेजेस इन दी सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के बेसिक 3 तरह के डिसीजंस होते हैं। सप्लाई चेन स्ट्रेटजी और डिज़ाइन। पहला जो सबसे स्ट्रेटेजिक लेवल का डिसीजन होता है, सबसे ऊपर लेवल का डिसीजन होता है, वो सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी क्या है और सप्लाई चेन का डिज़ाइन क्या होना चाहिए। दूसरा जो उसका होता है वो सप्लाई चेन प्लानिंग होता है। इसका बेसिक ये है कि जी आपकी जब एक दफ़ा आपने डिज़ाइन
सप्लाई चेन का डिज़ाइन फाइनलाइज कर लिया है, अब उस डिज़ाइन को आपने किस तरह से प्लान करना है, या उस डिज़ाइन आपने जब एक सप्लाई चेन डिज़ाइन कर ली तो आपने बता दिया कि मैं एक फैक्ट्री इधर लगाऊंगा, उसके सप्लायर वो वहाँ से आएंगे, सप्लायर प्रोडक्ट उधर से भेजेंगे और वो फैक्ट्री इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक अपनी चीज़ें पहुँचाएगी और वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन कस्टमर्स को की जो वो है ना डिमांड उसको फुलफ़िल करेंगे। तो अब आपने एक स्ट्रक्चर या एक फ़िज़िकल रिसोर्स बना दिया, डिज़ाइन करके लगा दिया। अब इस फिजिकल स्ट्रक्चर को या फिजिकल नेटवर्क को किस तरह इस्तेमाल करना है वो सप्लाई चेन प्लानिंग के अंदर आते हैं। नॉर्मली इसके सप्लाई चेन प्लानिंग का जो टाइम होराइजन होता है वो क्वार्टर ऑफ एन ईयर टू 1 ईयर तक होता है। ठीक है, एक साल आपने फोरकास्ट की कि जी अगले साल हमारी डिमांड इतने होने लगी है, अच्छा जी ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, उनको किस तरह से मैं इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि मैं अपनी कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकूं। सप्लाई चेन ऑपरेशंस जो होते हैं वो डेली एंड वीकली ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं कि जी आज मैं इस प्रोडक्शन प्लांट से इतनी प्रोडक्शन करूंगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे इतनी इन्वेंट्री होगी, वो इन्वेंट्री किस तरीके से ट्रांसपोर्ट की जाएगी किन किन कस्टमर्स तक। तो ये सारे ऑपरेशनल लेवल डिसीजंस हैं। वीकली या डेली इनका टाइम होराइजन होता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो होते हैं या स्ट्रैटेजी एंड डिज़ाइन के जो सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी और डिज़ाइन उसके जो डिसीजंस होते हैं वो 5 साल से 6 साल 7 साल वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। छोटे जो उसके बाद जो निचले लेवल के डिसीजंस हैं वो सप्लाई चेन प्लानिंग, और सबसे नीचे लेवल के जो डिसीजंस हैं वो सप्लाई चेन ऑपरेशंस के हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके कि जी सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी और डिज़ाइन के जो डिसीजंस हैं उनके अंदर हम क्या क्या डिसीजंस लेते हैं। इस तरह के जो डिसीजंस हैं सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी के जो डिसीजंस हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि जी सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और कौन कौन सी स्टेज के ऊपर कौन कौन से प्रोसेसेस जो है वो होने चाहिए। क्या हमें डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की ज़रूरत है? क्या हम डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं? किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, किस रूट से जाएंगे, लोकेशन क्या होनी चाहिए हमारे प्रोडक्शन प्लांट्स की, उनकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें बनानी चाहिए अपने प्रोडक्शन प्लांट पे, किन किन चीज़ों को हमें स्टोर करना है, किन किन चीज़ों के लिए हमें सप्लायर्स चाहिए, किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, थ्रू रेल करेंगे, थ्रू रोड करेंगे या थ्रू एयरक्राफ्ट करेंगे, कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हमें चाहिए अपनी सप्लाई चेन के अंदर, क्या हमें पॉइंट ऑफ सेल डाटा चाहिए या हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की फोरकास्ट पे ही रिलाय करेंगे। तो ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं ये स्ट्रेटेजी के डिसीजंस हैं। जाहिर बात है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में ज़रा टाइम लगता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है और जाहिर बात है ये इरिवर्सिबल होते हैं। एक दफ़ा आपने सप्लाई चेन का नेटवर्क बना लिया तो उसका चेंज करना सप्लाई चेन का नेटवर्क इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल रिसोर्स कंज्यूमिंग। आपका पैसा लगता है, आपका टाइम लगता है जो विच एवरी कंपनी कैन नॉट मैनेज और उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते। तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, नॉर्मली इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिए सप्लाई चेन डिज़ाइन के अंदर तो उसके अंदर फिर यू विल हैव टू पे अ वेरी हेफ्टी पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम पेनल्टी। सप्लाई चेन डिज़ाइन मस्ट सपोर्ट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके सप्लाई चेन के? मैं चाहता हूं कि मैं अपने कस्टमर तक चीज़ को तेज़ी से पहुंचाऊं। दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिवनेस। मैं चाहता हूं मैं अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट को सबसे सस्ती प्रोडक्ट पहुंचाऊं, सबसे लोएस्ट प्राइस प्रोडक्ट पहुंचाऊं। ये क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव? कॉस्ट का। पहला था रिस्पॉन्सिवनेस, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉस्ट का। मैं चाहता हूं मैं अपने कस्टमर तक अच्छी क्वालिटी की चीज पहुंचाऊं। ये क्या हो गई? ये आपके पास क्वालिटी का आ गया। रिस्पॉन्स, टाइम, क्वालिटी। ठीक है, मैं चाहता हूं मैं अपने कस्टमर तक ज्यादा वैरायटी पहुंचाऊं, तो ये क्या ऑब्जेक्टिव हो गया? वैरायटी का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो सप्लाई चेन का डिज़ाइन जो होता है वो इन सारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को रखा जाता है कि आप सस्ती चीज़ पहुंचाना चाहते हो, क्वालिटी चीज़ पहुंचाना चाहते हो, वैरायटी ज़्यादा देना चाहते हो अपने कस्टमर को, या कॉस्ट सबसे कम करना चाहते हो, या तेज़ी से रिस्पॉन्सिवनेस अपने कस्टमर तक चीज़ को तेज़ी से पहुंचाना चाहते हो। तो ये सारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं सप्लाई चेन के, जो सप्लाई चेन के डिज़ाइन इन सारे चीज़ों को सपोर्ट करता है।
वही बात, सप्लाई चेन डिजाइन डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म, एक्सपेंसिव टू रिवर्स, मस्ट टेक इन अकाउंट मार्केट अनसर्टेनिटी। अब जाहिर बात है लॉन्ग टर्म डिसीजन है, 5 से 6 साल का डिसीजन है, तो मार्केट अनसर्टेनिटी को भी आपको अंडर कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। अगले 5 साल के अंदर जो प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ इस सप्लाई चेन से, उसकी डिमांड क्या होगी, उसकी डिमांड होगी भी कि नहीं होगी, उसकी डिमांड कितनी होगी, ये सारी की सारी फोरकास्टिंग आपको पहले करनी पड़ती है कि जी प्रोडक्ट की एक डिमांड है मार्केट में, फिर उसके हिसाब से सप्लाई चेन डिजाइन की जाती है। सप्लाई चेन प्लानिंग के अंदर कौन कौन से डिसीजंस हैं? ओवरऑल सप्लाई चेन प्लानिंग के अंदर डिसीजंस होती हैं पॉलिसीज टू गवर्न। अब आपका फिजिकल नेटवर्क जो है कि जी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक खास लोकेशन पे लग गया, वो लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, वो डिज़ाइन फेज में हमने डिसाइड कर लिया उसकी लोकेशन ये होनी चाहिए। सप्लायर कौन कौन से आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, वो आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुमने मुझे चीज़ पहुंचानी है। आप अपनी जो प्रोडक्ट बनाओगे किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचाओगे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर किस कस्टमर तक पहुंचाएगा, ये सब कुछ आपने डिज़ाइन फेज में आइडेंटिफाई कर लिया। आपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए अपने पार्टनर, सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ। इस तरह से आपने ट्रांसपोर्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि तुमने मेरी चीज़ पहुंचानी है। अब ये सब आपका फिजिकल नेटवर्क जो है सप्लाई चेन का, दैट इज इन प्लेस, दैट इज ऑपरेटिंग और दैट इज वर्किंग। अब आपने इस सारे फिजिकल नेटवर्क को इस्तेमाल किस तरह से करना है, उसकी गवर्निंग पॉलिसीज क्या होंगी, वो सारी की सारी सप्लाई चेन प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। नॉर्मली जो प्लानिंग होती है वो फोरकास्ट से स्टार्ट होती है कि जी इस साल हमारी इतनी सेल्स हुई हैं, अगले साल वी आर फोरकास्टिंग अबाउट दिस मच ऑफ सेल्स। तो जब वो आपके पास फोरकास्ट आती है कि जी अगले साल की, उसके बाद आपका सारा जो सप्लाई चेन का नेटवर्क है उसको आप प्लान करते हो कि इस प्रोडक्शन प्लांट से मैं इतनी चीज़ बनाऊंगा, इस सप्लायर से मैं इतनी चीज़ लूँगा, वो चीज़ मैं इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करूँगा, फिर जो फिनिश्ड गुड है वो मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुँचाऊँगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इस तरह से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचाएगा। तो ये सारे की सारे जो प्रोसेस है फोरकास्ट से स्टार्ट हुआ और फिर आपने उसको शुरू किया, प्लान किया अपने रिसोर्सेज को। प्लानिंग के अंदर कौन कौन से डिसीजंस आ जाते हैं वो हम देख लेते हैं। विच मार्केट विल बी सप्लाइड फ्रॉम विच लोकेशन, कि जी आपका जो कस्टमर है या जो मार्केट है वो किस किस लोकेशन से या किस किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से या किस किस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से उसकी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। इन्वेंट्रीज हमने कितनी रखनी है, रखनी भी है कि नहीं रखनी, थोड़े लेवल पे रखनी है, ज़्यादा लेवल पे रखनी है या मीडियम लेवल पे रखनी है, सब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से करना है। अगर हम पूरी चीज़ नहीं बना सकते कस्टमर की तो हम किस से सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ आउटसोर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इन्वेंट्री को किस तरह से मैनेज करना है ये हम देखेंगे इन्वेंट्री पॉलिसीज़ के अंदर। इन्वेंट्री पॉलिसीज़ देखनी होती हैं प्लानिंग स्टेज के अंदर कि कितनी चीज़ हमने अंदर रखनी है अपने पास। मार्केट प्रमोशन देनी है कि नहीं देनी। प्रमोशंस क्या होती हैं कि जी 20% ऑफ ऑन द प्रोडक्ट, 30% ऑफ ऑन द प्रोडक्ट। तो ये सारे के सारे डिसीजंस आपने प्लानिंग फेज के अंदर लेना होते हैं। मस्ट कंसिडर इन प्लानिंग डिसीजन डिमांड अनसर्टेनिटी, एक्सचेंज रेट्स, कंपटीशन ओवर द टाइम होराइजन। तो ये जो प्लानिंग फेज है इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं और उनमें से ये है कि जी डिमांड की अनसर्टेनिटी, कस्टमर की जो डिमांड आ रही है उसके अंदर अनसर्टेनिटी को आपने अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। अगर आपकी ऐसी सप्लाई चेन है जो इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ है, कोई आपका किसी और मुल्क में कोई सप्लायर बैठा हुआ है, तो उस एक्सचेंज रेट को भी आपने अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। और आपने कंपटीशन ओवर द टाइम होराइजन, कोई और आपका कंपेटिटर वही प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस कराता है मार्केट के अंदर तो इस चीज़ को भी आपने अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। अब हम देखते हैं जो थर्ड टाइप ऑफ सबसे लोएस्ट स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग है इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट इज सप्लाई चेन ऑपरेशंस। सबसे पहले तो हम देख लिया सप्लाई चेन स्ट्रेटजी एंड डिज़ाइन, फिर उसके बाद हमने सप्लाई चेन प्लानिंग, अब हमने देखनी है ऑपरेशंस। इसका टाइम होराइजन मैंने आपको पहले भी बताया था, वीकली होता है या डेली होता है। इसके अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इंडिविजुअल कस्टमर ऑर्डर्स के डिसीजन लिए जाते हैं कि जी इस हफ्ते हमारे पास इतनी डिमांड आ गई है, अगले हफ्ते के लिए हमारे पास और डिमांड आई हुई है, उसको फुलफिल करना है, तो अगले हफ्ते के लिए आपने उसको प्रोडक्शन को मैनेज करना है।
ओवरऑल सप्लाई चेन की कॉन्फ़िगरेशन जो फिक्स हुई हुई होती है कि जी कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल होगा, वो सारे का सारा हमने प्लानिंग फेज के अंदर फिक्स कर दिया होता है कि ये चीज़ जो है वो इस प्रोडक्शन प्लांट में बनेगी, इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो तो फिक्स हो गया। अब उस सारे प्रोसेस को वीकली बेस पे मैनेज करना या डेली बेस पे मैनेज करना, दैट इज अंडर सप्लाई चेन ऑपरेशंस। इस सप्लाई चेन ऑपरेशंस के जो डिसीजंस होते हैं उनका बेसिक गोल होता है इज टू इम्प्लीमेंट वो सारी पॉलिसीज जो हमने प्लानिंग फेज के अंदर डिसाइड कर ली हैं। ठीक है कि जी हम प्रोडक्ट 1 के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1 से ही प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सप्लायर 1 से चीज़ खरीदेंगे, उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 तक पहुंचाएंगे और कस्टमर्स, सारे कस्टमर्स तक पहुंचा देंगे। तो यह आपने एक प्लान कर लिया है कि जी इधर से ही आएगा। अब ऑपरेशनल लेवल डिसीजंस जो होते हैं उनका काम होता है कि जो आपने गोल्स इंप्लीमेंट किए हैं उनको फॉलो करें इफेक्टिवली। इसके अंदर ओवरऑल वही डेली एंड वीकली बेसिस पे काम हो रहे होते हैं कि जी इन्वेंट्री कितनी रखनी है, कितने ऑर्डर्स को पिकअप करना है, कितने ऑर्डर्स को पहुंचाना है, कोई शिपमेंट जो है पर्टिकुलर शिपमेंट उसको भेजना है, कोई प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, कोई रॉ मटेरियल के इन्वेंटरीज को रिप्लेनिश करना है। तो ये सारे डेली बेसिस के प्लानिंग स्टेजेस में तो हमने एक ओवरऑल बिगर पिक्चर के जी इस प्रोडक्शन प्लांट से इतनी कैपेसिटी 10,000 चीज़ें बनाएंगे। अब वो 10,000 चीज़ें डेली बेसिस पे बनेंगी ना, 100 आज बनेंगी, 200 कल बनेंगी, 300 परसों बनेंगी, तो पूरे साल की तो हमने प्लानिंग कर ली है कि पूरे साल में हम 10,000 चीज़ें बनाएंगे। अब जो डेली एंड वीकली डिमांड पूरी करनी है वो सप्लाई चेन ऑपरेशंस के अंदर आ जाती है। इसके अंदर जाहिर बात है टाइम होराइजन छोटा होता है, डेली और वीकली होता है, तो इसके अंदर अनसर्टेनिटी इतना इम्पैक्ट नहीं करती। प्लानिंग फेज के अंदर अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, मगर सप्लाई चेन ऑपरेशंस के जो डिसीजंस होते हैं उनके अंदर क्योंकि टाइम होराइजन शॉर्ट टर्म होता है तो अनसर्टेनिटी इतनी इम्पैक्ट नहीं करती। अब हम देखते हैं, कुछ हमने पहले भी देखी, अभी भी हम ज़रा देख लिया कि जी सप्लाई चेन होती क्या है, सप्लाई चेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सप्लाई चेन के अंदर स्टेजेस क्या क्या होती हैं, सप्लाई चेन के डिसीजंस किस तरह से लिए जाते हैं, ये हमने देख लिया कि जी स्ट्रेटेजिक होते हैं, प्लानिंग स्टेजेस के डिसीजंस होते हैं, इस तरह ऑपरेशन स्टेजेस के ऑपरेशनल लेवल डिसीजन होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से सप्लाई चेन को ओवरऑल किन पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं सप्लाई चेन को। नॉर्मली सप्लाई चेन को इन द लिटरेचर वी कैन सी फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव्स। एक होता है साइकिल व्यू और दूसरा होता है पुश पुल व्यू। साइकिल व्यू क्या होता है? प्रोसेस इन सप्लाई चेन्स आर डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ साइकिल, each performed at the interface between 2 successive supply chains stages. Supply chain stage क्या है? कस्टमर और रिटेलर, ये 2 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो इनका इंटरफेस क्या होगा जहां कस्टमर और रिटेलर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने सप्लाई चेन के अगर प्रोसेसेस को कैटेगराइज करना है तो फिर हम उनको प्रोसेस व्यू से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला व्यू जो है, जो लिटरेचर के अंदर हमें नजर आता है, वो साइकिल व्यू है। दूसरा है पुश पुल व्यू। पुश पुल व्यू क्या कहता है? पुश पुल व्यू बेसिकली प्रोसेसेस को कैटेगराइज करता है इन टर्म्स ऑफ द डिमांड, किस तरह से डिमांड आई है। अगर कोई प्रोसेस कस्टमर की डिमांड के बाद स्टार्ट हुआ है तो देन इट इज पुल प्रोसेस। अगर वो कस्टमर की डिमांड से पहले ही स्टार्ट कर दिया गया है इन एंटिसिपेशन ऑफ द कमिंग डिमांड, तो वो पुश प्रोसेस होता है। वो हम देखते हैं पुश पुल और साइकिल व्यू क्या है। मैं आपको ज़रा सी सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ कि जो मैंने आपको बताई थी ना, हर सप्लाई चेन के अंदर स्टेजेस होती हैं। सप्लायर होता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको अगर साइकिल व्यू के अंदर देखें तो आपके पास एक सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जो
कस्टमर करता है, कस्टमर आता है आपसे चीज लेता है, वो सारी कस्टमर ऑर्डर साइकिल के अंडर आ जाती है। रिटेलर जो है वो कस्टमर को चीज प्रोवाइड करता है, ये इन दोनों का इंटरफेस है। कस्टमर आके रिटेलर से चीज लेता है, कस्टमर रिटेलर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है तो उसकी अपनी इन्वेंट्री जो है, इंटरनल इन्वेंट्री, वो कम होती है, तो वो फिर रिप्लेनिशमेंट साइकिल जनरेट करता है। रिप्लेनिशमेंट साइकिल क्या, वो डिस्ट्रीब्यूटर को कहता है कि भाई मेरे पास अब ये चीज कम हो गई है, मुझे और भेजो। वो जब और भेजता है तो डिस्ट्रीब्यूटर भी अपनी एक ऑर्डर पीछे की तरफ मैन्युफैक्चरर की तरफ भेजता है और कहता है कि जी हमारे पास ये चीज की इतनी डिमांड और आ गई है तो और चीज बना दो, तो वो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल के अंदर आ जाती है। जब रिप्लेनिशमेंट साइकिल खत्म होती है कि जी हमें और चीज चाहिए, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बनती है, जाहिर बात है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ फिनिश्ड गुड इज फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो अगर आप भी कोई चीज बना रहे हो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो जब भी आप फिनिश्ड गुड बनाओगे तो आपका मैन्युफैक्चरर आपके सप्लायर से प्रोक्योरमेंट साइकिल शुरू करेगा और कहेगा कि जी मुझे इस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, भेजो। तो आप इस तरीके से सप्लाई चेन के प्रोसेसेस को एक तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो कि जी ये वाला जो प्रोसेस है ये कस्टमर ऑर्डर साइकिल है, ये वाला रिप्लेनिशमेंट साइकिल है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है और प्रोक्योरमेंट साइकिल है। पुश पुल व्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो ये है कि जी आप सप्लाई चेन के प्रोसेसेस को पुश पुल व्यू पे भी कैटेगराइज कर सकते हो कि जी आपके कस्टमर ने डिमांड की है किसी प्रोडक्ट की, तो वो जो कस्टमर ने डिमांड की है प्रोडक्ट की, तो वो उसने क्या किया, अपनी तरफ पुल किया। प्रोडक्ट को कस्टमर ने अपनी तरफ पुल किया, मुझे चीज चाहिए, ठीक है। अब वो उसने चीज ले ली। अब आपका जो सप्लायर है या आपका जो रिटेलर है उसने कस्टमर को चीज दे दी। अब क्या हुआ, उसके पास कमी हो गई है, तो वो भी पुल करेगा अपनी तरफ पीछे से चीज के जी मुझे और चीज चाहिए, रिप्लेनिशमेंट साइकिल। तो ये ऑल डिपेंड करता है पुश पुल व्यू कि जी क्या कस्टमर ने चीज मांगी है या आपने पहले से ही बना के पहुंचा दी है इन एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर डिमांड। पुश क्या होता है, ये तो पुल था ना, कस्टमर ने चीज मांगी तो वो उसने पुल किया अपनी तरफ। पुश ये होता है कि पहले से ही आपने बहुत सारी चीजें बना के रिटेलर तक पहुंचा दी, दैट इज द पुश प्रोसेस कि जी पहले से ही बना दी है, कस्टमर ने अभी तक डिमांड नहीं की मगर पहले से ही पहुंचा दी है। तो ये बेसिकली प्रोसेसेस को व्यू करने की या कैटेगराइज करने की दो स्ट्रेटजीज थी जिनको हम साइकिल व्यू कहते हैं और पुश पुल व्यू कहते हैं। ये हम आगे भी बुक के अंदर इस स्टेज के अंदर आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू देम। ये आगे भी हम देखेंगे जब सप्लाई चेन के नेटवर्क्स डिजाइन होंगे। ये जो प्रोसेस पर्सपेक्टिव्स हैं और वेज ऑफ कैटेगराइजिंग प्रोसेसेस जो पुश पुल व्यू है और साइकिल व्यू है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि सप्लाई चेन के डिफरेंट प्रोसेसेस को कैटेगराइज किया जाए, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए। इसी तरीके से सप्लाई चेन के अंदर कोशिश होती है कि ज़्यादातर पुल प्रोसेसेस हों, पुश प्रोसेसेस ना हों, तो उससे भी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे डिस्कस करते जाएंगे इन दी कमिंग चैप्टर्स इन दी सप्लाई चेन डिज़ाइन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक दफ़ा आपको मैंने इनसे आइडेंटिफाई कराना था, एक दफ़ा इनसे इंट्रोड्यूस कराना था ताकि ये आपके बैक ऑफ द माइंड रहें कि ये कॉन्सेप्ट सप्लाई चेन के प्रोसेसेस को किसी तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो, कौन कौन से तरीके हैं, पुश पुल व्यू से कर सकते हो या साइकिल व्यू से कर सकते हो। ये कुछ पुश पुल व्यू की एक्सप्लेनेशंस हैं। पुल एग्जीक्यूशन इज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू द कस्टमर ऑर्डर, वही पुल एग्जीक्यूशन इज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर। पुश जो होता है एग्जीक्यूशन इज इनिशिएटेड इन एंटीसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर। तो इसके अंदर स्पेक्यूलेशन आ जाती है कि जी मेरे ख्याल में कस्टमर को कल के दिन इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर रिएक्शन आ जाता है कि जी कस्टमर ने इतनी चीज़ें ले ली हैं, अब इन चीज़ों को फुलफिल करो और या इनको रिप्लेनिश करो। तो ये पुश पुल व्यू के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं।
सो थोड़ी सी हम अगर दोनों कॉन्सेप्ट्स को देखें तो आपके पास एक डेल की सप्लाई चेन है। डेल का बेसिक सप्लाई चेन किस तरह से डिफरेंट है दूसरे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कि जी डेल जो है वो डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाता है। तो क्या है, कस्टमर जो है वो ऑर्डर को इनिशिएट करता है या पुल करता है अपनी तरफ। ठीक है, जब वो पुल करता है कि मुझे चीज़ चाहिए तो कस्टमर ऑर्डर और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है वो इनिशिएट हो जाती है। कस्टमर ऑर्डर साइकिल और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। कस्टमर कहता है मुझे इस तरह का कंप्यूटर चाहिए, तो वो उसको टाइम दे देते हैं कि यू हैव टू वेट अबाउट 3 to 4 या 1 वीक। उससे क्या होता है, वो ऑर्डर जनरेट होता है, पीछे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उस प्रोडक्ट को बनाता है, असेंबल करता है और कस्टमर तक पहुंचा देता है। ठीक है, और ये जो प्रोक्योरमेंट साइकिल है ये पुश प्रोसेस होता है। क्योंकि डेल को पता है कि पिछले साल हमारे 2000 या 10,000 या 20,000 कंप्यूटर्स बिके हैं, तो इस साल हम एंटीसिपेट कर रहे हैं 2500 या अगर पिछले साल 2000 बिके हैं तो इस साल हम एंटीसिपेट कर रहे हैं 2500 बिकेंगे। तो ये एंटीसिपेशन में वो कर रहे हैं। तो ये क्या आ रही है, स्पेक्यूलेशन आ रही है। पहली स्टेज के अंदर तो पुल था ना, रिएक्शन टू सर्टेन कस्टमर ऑर्डर, अब इसके अंदर स्पेक्यूलेशन आ रही है। तो ये पुश प्रोसेस बन जाता है जो प्रोक्योरमेंट साइकिल है। तो डेल अपना एक इन्वेंट्री मेंटेन करता है बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन या बेस्ड ऑन जो आपकी हिस्टोरिकल डाटा होता है या हिस्टोरिकल डिमांड होती है, उसकी एंटीसिपेशन में एक अपना रॉ मटेरियल अपने पास रखता है, और जैसी कस्टमर अपनी उससे प्रोडक्ट को पुल करता है तो वो रिप्लेनिशमेंट कर देता है उसकी। जो इस चैप्टर के कुछ थोड़े लास्ट कॉन्सेप्ट्स में से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने देखा कि जी प्रोसेसेस इन दी सप्लाई चेन, उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक पुश प्रोसेस, पुश पुल प्रोसेस से कर सकते हैं, पुश पुल कैटेगराइजेशन, या प्रोसेस साइकिल व्यू से कर सकते हैं। तो ये हमने प्रोसेसेस को कैटेगराइज किया है ना सप्लाई चेन के अंदर। अब सप्लाई चेन के कुछ मैक्रो प्रोसेसेस होते हैं। मैक्रो प्रोसेसेस वो होते हैं कि जो कस्टमर से रिलेटेड सारे के सारे प्रोसेसेस जो होंगे वो मैक्रो लेवल पे या मैक्रो प्रोसेसेस कहलाए जाएंगे। इसी तरह सप्लायर्स के साथ जो आपने प्रोसेसेस करने हैं वो सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहलाए जाएंगे, और जो आपकी इंटरनल सप्लाई चेन के अंदर प्रोसेसेस होते हैं उनको हम इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेसेस कहते हैं। तो हम प्रोसेस को डिफरेंट तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं। पुश पुल व्यू से भी कर सकते हैं, हम उसको साइकिल व्यू से भी कर सकते हैं, और हम उनको मैक्रो प्रोसेसेस के अंदर भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि यार ये सप्लायर वाले प्रोसेसेस हैं, ये कस्टमर वाले प्रोसेसेस हैं, और ये सारे के सारे प्रोसेस इंटरनल सप्लाई चेन के हैं। ठीक है, ये आपके पास ओवरऑल एक इस स्लाइड के अंदर आपके पास ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है उसकी कि जी सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सप्लाई चेन के कौन कौन से प्रोसेसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखें इंटरनल सप्लाई चेन के अंदर हमें क्या करनी पड़ती है, हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर नेटवर्क कैसा होना चाहिए, कौन सी फैक्ट्री कहाँ लगानी है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहाँ लगाना है, कौन सा सप्लायर कहाँ से, किस सप्लायर से चीज़ लेनी है, किस कस्टमर तक आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से चीज़ें पहुंचाओगे। आपने डिमांड को प्लान करना होता है, फोरकास्ट करना होता है, या डिमांड आई है, फोरकास्टेड डिमांड आई है, उसको किस तरह से आपने फुलफिल करना है वो प्लानिंग करनी है। आपने उस प्लानिंग के लिए सप्लाई को किस तरह से प्लान करना है, कितनी मैं किस सप्लायर से चीज़ लूँगा। आपने सारे के सारे
सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, फील्ड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपने सारे ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट करनी है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। तो ये सारे के सारे इंटरनल सप्लाई चेन के जो प्रोसेसेस हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर ISCM। इसी तरह सप्लायर्स के साथ आपने क्या काम करना है, आपने निगोशिएशन करनी है, आपने कोलैबोरेशन करनी है, आपने उनसे कोई चीज़ खरीदनी है, आपने उनको कोई चीज़ आउटसोर्स करनी है कि जी मैं ये चीज़ नहीं बना सकता तो मुझे बना के भेज देना, मैं आगे अपने नाम से कस्टमर को पहुंचा दूंगा। तो ये सारे के सारे जो रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट, ये जो प्रोसेसेस हैं सप्लायर्स के साथ, वो सप्लाई चेन या सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंडर आ जाते हैं। इस तरह कस्टमर के साथ भी आपने कुछ रिलेशनशिप मैनेज करने हैं, उसके अंदर प्राइस, सेलिंग प्राइस, किस तरीके से चीज़ को, ऑर्डर को मैनेज करना है, किस तरीके से कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करना है, ये सारे के सारे मैक्रो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो सप्लाई चेन के प्रोसेसेस को आप डिफरेंट तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हो। उसमें पुश पुल व्यू भी होता है, उसके अंदर साइकिल व्यू भी होता है, उसके अंदर आप मैक्रो प्रोसेसेस को भी कंसिडर कर सकते हो कि जी ये सप्लायर के सारे प्रोसेसेस हैं, ये कस्टमर के सारे प्रोसेसेस हैं और ये इंटरनल सप्लाई चेन के ओवरऑल प्रोसेसेस हैं। तो लेट मी गिव यू एन ओवरऑल एक्सप्लेनेशन कि जी आज का चैप्टर हमने क्या किया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जी आपने जो आज लेक्चर में पढ़ा है उसको आप बुक खोलो, बुक को पढ़ो। ठीक है, बुक के अंदर और टेक्स्ट आपको मिलेगा और बुक के आखिर में आपको कुछ केस स्टडीज भी मिलेंगी। आपके पास एप्पल की केस स्टडी है, ज़ारा की है, मैकमास्टर कार की है, ग्रेंजर WW ग्रेंजर एंड मैकमास्टर कार, टोयोटा, अमेज़ॉन, ये सारे की सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। आपको पता चलेगा इनकी सप्लाई चेन क्या है। टोयोटा आप देखें, इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसी तरह जो ज़ारा है, इट इज़ मच मोर ऑफ, आप जो क्लोथ्स बनाती है, क्लोथ लाइन, उनकी सप्लाई चेन्स को मैनेज करती है। ये टेक कंपनी है, ये टेक प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन को मैनेज करती है। ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये रिपेयर सर्विसेज देते हैं, प्लम्बर देंगे, मैकेनिक चाहिए मैकेनिक भेज देंगे। इसी तरह से टेलीफोन ख़राब हो गया तो टेलीफोन को ठीक करने के लिए कोई भेज देंगे। तो ये इनको क्या कहते हैं, SRO, सर्विस रिपेयर ऑपरेशंस प्रोवाइड करते हैं। इनकी भी सर्विसेज की भी अपनी सप्लाई चेन्स होती हैं। अमेज़ॉन आपको पता है, अमेज़ॉन आपको बुक्स बेचता है, इनकी भी एक अपनी सर्विस है। तो हर प्रोडक्ट के हिसाब से सप्लाई चेन है उसकी, और आप इनको जाके पढ़ें कि जी सप्लाई चेन इनके अंदर क्या ख़ास बात है, इनके किस तरह इनकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनके रिटेलर्स हैं कि नहीं है, कस्टमर तक चीज़ को किस तरह पहुंचाते हैं। आज के चैप्टर के अंदर, चैप्टर 1 जो है, जो आज का लेक्चर था उसके अंदर ओवरऑल जो मैंने आपको सबसे पहले कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया कि जी ओवरऑल कोर्स से आप ये जो MGT 561 का कोर्स है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आउटलाइन है उसकी, स्ट्रेटेजिक आउटलाइन बताई कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू टेक सच डिसीजंस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया। बुक भी मैंने आपको बता दी कौन सी है, इट्स इजीली अवेलेबल बुक इन पाकिस्तान। उस चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा सबसे पहले कि जी सप्लाई चेन होती क्या है, सप्लाई चेन के प्रोसेसेस क्या होते हैं, उनको किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सप्लाई चेन कि अगर हम देखें, यहाँ से जाके देखते हैं सप्लाई चेन के अंदर किस तरह के डिसीजंस होते हैं। आपके पास स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, प्लानिंग के डिसीजंस हैं, ऑपरेशंस के डिसीजन। तो ये भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि सप्लाई चेन में किस तरह के डिसीजंस किस किस स्टेज पे लिए जाते हैं। हमने ये भी देखा कि जी सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सप्लाई चेन के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। और फिर हमने देखा कि जी कमर्शियल सप्लाई चेन्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कमर्शियल सप्लाई चेन का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सरप्लस। और इसी तरह से दूसरी ह्यूमैनिटेरियन या डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाई चेन्स भी होती हैं। उनका मकसद या उनका ऑब्जेक्टिव माइट नॉट बी द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बट उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि जी कम से कम पैसे में चीज़ पहुंचा दो या सबसे तेज़ी से चीज़ पहुंचाओ, कॉस्ट डजंट रियली मैटर क्योंकि डिजास्टर है। तो उनके ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं, मगर जो कमर्शियल सप्लाई चेन्स हैं, जहां बिजनेस रिलेटेड सप्लाई चेन्स हैं, उनकी हमेशा ऑब्जेक्टिव है कि जी सप्लाई चेन सस्ती से सस्ती होनी चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सरप्लस। इसके साथ हमारा आज का चैप्टर
आज का लेक्चर जो है इट इज़ फिनिश्ड। आज का लेक्चर हमने ऑलमोस्ट ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ डॉक्टर फ़हद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।